आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुन। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी ख़बरनामा अक्स महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। गुल अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युल्दउल मरउ मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, बुखारी व मुस्लिम। इंसान को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का शादनगर में पैदल दौरा, आवाम को कोविड कवानीन पर अमल करने की दी हिदायत। मुस्लिम अवामी नुमाइंदों ने अंदरून हफ्ता कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ जमीन अलॉट करने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर तहसीलदार के घेराव का मुतलबा। मक्तल मंडल पंचादेव पहाड़ के करीब गर्क हुए अफराद की 2 नाशें जुराला डैम में दस्तयाब और 2 अफराद की तलाश जारी। अब खबरें तफसील से। जिला महबूब नगर भूतपुर मंडल अमिस्तापुर के करीब राजीव गृहा कुल्पा के पास जिला कलेक्टर एस वेंकट राव की कार से एक मोटरसाइकिल टकरा गई। इस हादसे में जिला कलेक्टर एस वेंकट राव को किसी भी किस्म का कोई जख्म नहीं पहुंचा। इस हादसे में कार को काफी नुकसान हुआ, जिसकी बिना पर तहसीलदार की कार में दफ्तर कलेक्ट्रेट रवाना हो गए। बाइक पर सवार शख्स शदीद जख्मी हुआ, उसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। बारिश की वजह से मिट्टी का मकान मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मुतासिर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए आगाही हासिल की। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रहे बारिश की वजह से जिला महबूब नगर के मंडल गंडीर के मौजे पगड़ियाला में कल रात एक मकान मुनहदिम हो गया, जिसकी वजह से घर में सो रहे 3 अफराद शरनमा 35 साल, भवानी 14 साल, वैशाली 8 साल हलाक हो गए। कोरोना वबा के पेश नज़र इनकी नाशों को शादनगर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जिसकी इत्तला पाकर रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने दवाखाने पहुंचकर मुतासिर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए हमदर्दी जताई और उन्हें इस बात का तयक़ुन दिलाया कि वो इस मुश्किल वक्त में इस खानदान के साथ खड़े हैं। जबकि परगी MLA महेश रेड्डी ने 60,000 रुपये माली मदद की। इस मौके पर रियासती वजीर के हमरा कलेक्टर एस वेंकट राव और रुकन असेंबली अंजय यादव भी मौजूद थे। ఎంఆర్ఓ ఎంపీటీ వాళ్ళ అధికారులు అందరూ తిరిగి చాలా వరకు కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేయించడం జరిగింది। మరి దయచేసి ఎక్కడ ఇల్లు పడిపోవడానికి ప్రమాదంగా ఉందంటే దయచేసి మీ అంతకు మీరేనే బయట ఉండండి, అధికారులకు సమాచారం అందిస్తే ఆ ఇల్లుని డెమాలిషన్ చేస్తాం। పేదవాళ్ళైతే ఆ ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టేయడానికి కూడా మేము గ్యారంటీగా కృషి చేస్తాం। అక్కడ కట్టలేకపోయినా మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడుతున్నాం కనుక అక్కడైనా ఎక్కడో దగ్గర మీకు అవకాశం గ్యారంటీ కల్పిస్తాం। దీనికి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలా। ప్రాణం అనేది చాలా విలువైంది। ప్రమాదం అని తెలిసి మీ ఇంట్లో ఆ పరిస్థితి తెలుస్తుంటుంది, తెలిసి కూడా మీరు అక్కడ ఉండడం మూలన ఇలాంటి జరిగితే మరి కుటుంబ పరిస్థితి ఏమవుతుందని ఆలోచన చేసుకోవాలా। ఎవరు సమాచారం అందించినా వెంటనే అధికారులు చర్య తీసుకుంటారు। ఒకవేళ మీకు ఇల్లు లేకపోతే ఎక్కడో దగ్గర పునరావాసం చేసి భోజనాలు అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా జిల్లా యంత్రాంగం కూడా ఆల్రెడీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎక్కడైతే పేదవాళ్ళు ఉంటారో పేదవాళ్లకు ఇల్లు లేని వాళ్ళకు కూడా మరి ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కట్టే డబుల్ బెడ్రూమ్లో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది। మరి ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్లి ఆ కుటుంబాన్ని ఖచ్చితంగా ఆదుకుంటాం। ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఆ నియోజకవర్గంలోని డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఆ పగిడ్యాల గ్రామాన్ని కూడా కొన్ని కేటాయించి కొన్ని ఇల్లు కట్టించి అందులో వీళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది। కలెక్టర్ గారు కూడా మేము ఆదేశించడం జరిగింది।
కనుక దయచేసి ప్రతి గ్రామ సర్పంచ్ ఇంకా ఈ 2 రోజులు వర్షాలు ఉంటాయి కనుక చాలా వరకు మొత్తం వర్షంలో భూమి కానీ నేల కానీ మెద్దే పైకప్పులు కానీ తడిసిపోయి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మట్టి ఇళ్ళు చాలా మెత్తగా ఉంటాయి. వాటిని గుర్తించాలి. ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరు జాయింట్గా అప్రమత్తం కావాలి. ఎవరైనా పాత భవనం పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది కానీ వాళ్ళు సహకరిస్తలేరని చెప్తే చట్ట ప్రకారం అది ఖాళీ చేయించి కూడా మనం దాన్ని డెమాలిషన్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ఇంత ఆదరణ చూపేటట్లు చేయాలని చెప్పి ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ టోటల్గా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు పంచాయత్ సెక్రటరీలు అందరూ పర్యటించి ఇలాంటి ప్రమాదానికి గురవుతున్నట్టు ఇళ్లను వెంటనే తొలగించాలి, వాళ్ళకు పునరావాసం కలిగించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज शादनगर मुस्तकर में सरकारी दवाखाने में हलाक हुए अफराद खानदान से मुलाकात के बाद गेस्ट हाउस को पैदल जाते हुए आवाम की जानिब से कोरोना कवानीन पर अमल दरामद का जायजा लिया, जिसके तहत होटल और ऑटो में सवारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हिदायत दी कि होटल मालिकान और आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाना जरूरी है और इसी तरह 7 सीटों वाले ऑटो में 13 अफराद के साथ ले जाने वाले ऑटो को रोककर हिदायत दी कि कोविड कवानीन पर अमल हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर कोई एक शख्स भी कोविड से मुतासिर होता है तो सब लोग इसकी जद में आ सकते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ के हमरा शादनगर रुकन असम्बली अंजय यादव भी मौजूद थे। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకోవాలమ్మా. మీ అంత చిన్న పిల్లవాడు అక్కడ ఎక్కడ చెప్పండి. मुसलमानाने महबूब नगर की एक नुमाइंदा वफ्द ने, जिसमें अनवर पाशा सदर तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर ज़िला यूथ मजलिस, सैयद सादतुल्ला हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर ओ सदर टाउन मजलिस, मुजम्मिल मोहिउद्दीन ओ अमजद अली कौंसलरान बल्दिया शाह साहब गुट्टा, मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी, हाफिज इदरीस सिराजी, ईसा अमूदी, इब्राहिम कादरी TRS पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों के हमरा महबूब नगर टाउन के नवाही इलाके इनगुंडा में हुकूमत की जानिब से मुकामी रुकन असम्बली और रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की दिलचस्पी से सर्वे नंबर 380 सरकारी अराजी में अलॉट करदा 5 एकड़ जमीन के हुदूद का तयन किया गया था। अलॉट करदा जमीन जिस पर श्रीनिवास गौड़ ने कंपाउंड वॉल की तामीर का संगी बुनियाद भी रखा था, जो किसी भी कब्रिस्तान कमेटी या किसी भी मुस्लिम लीडर को इतला दिए बगैर कब्रिस्तान के लिए मख्तस करदा ज़मीन कब्रिस्तान के बजाय डबल बेडरूम सरकारी मकानात की तामीर के लिए अलॉटमेंट की हैरतनाक हकीकत और मुसलमानों से की गई सरकारी भद्दी मजाक का इंकशाफ हुआ। मुसलमानों की नुमाइंदों ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान की ज़मीन को बगैर इतला या मुनासिब मुतबादिल जगह अलॉट किए बगैर कब्रिस्तान की ज़मीन को सरकारी अगराज के लिए इस्तेमाल करने के अमल पर महकमा माल के ओहदेदारों के तर्ज अमल पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द मुतबादिल ज़मीन अलॉट करने का मुतालबा किया और अंदरून हफ्ते मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 5 एकड़ ज़मीन के अलॉट में देरी या टाल मटोल पर सख्त एहतजाज और तहसीलदार के घेराव का इंतबाह दिया। సార్ ఇది మాకు తెలియదు మాకు చూపించిండ్రు, మేము మాకు ఉంది కదా అనుకున్నాం. ఇది ఈడికి వచ్చినాక ఉసుక వేసిండ్రు, అంతా వేసిండ్రు, ఇదేందబ్బా కదా అని చెప్పి మీకు మిమ్మల్ని ఫోన్ చేస్తున్నాం. చైర్మన్ సాబ్ కూడా అడిగితే చైర్మన్ సాబ్ కూడా అనే అరే మాది ఎట్లా సార్, మేము ఇంకా ఎక్కడికి పోవాలి సార్? मुसलमानों ने महबूब नगर की ख्वाहिश पर महबूब नगर के रुकन असम्बली श्री श्रीनिवास गौड़ साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर है
ने एनगुंडे के इलाके में सरमट 380 में 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम खबरस्तान के लिए अलाट कराकर उसमें फाउंडेशन स्टोन भी रखा था, लेकिन आप तमाम मुसलमान नुमाइंदा हजरात खबरस्तान के कंपाउंड वाल की तामीर के सिलसिले में मौके पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि ज़मीन उस खबरस्तान से वो कैंसिल करके हाउसिंग कॉलोनी के लिए दे दी गई है और यहाँ डबल बेडरूम घर बनाए जा रहे हैं। मेरे टेलीफोन सर्वे से रब्त पैदा करने मालूम हुआ, हाँ ये ज़मीन दे दी गई है। इस तरह मुसलमानों जो न्यूटन को जो परेशानी है उसका इजाला नहीं हो सका, लिहाजा हमारा ये मुतालबा है महकमा माल के लोगों मिनिस्टर साहब से कि दोबारा कोई और ज़मीन फौरी से फौरी तर मुसलमानों को दिलवा दें, ताकि तेज़ी से ये कोविड की वजह से तेज़ी से अमवात हो रही हैं, उनको दफनाने के लिए फिलवक्त न्यूटन में कोई जगह नहीं है। जब तक ये जगह नहीं मिलेंगी, जब तक मुसलमान परेशान रहेंगे, हमारा ख़ास तौर से मुतालबा है कि 380 खबरस्तान में अगर देते हैं तो ठीक है, अगर हाउसिंग बोर्ड दे दी है तो उसे मुत्तसिल कोई भी जगह अपने को और 5 एकड़ दे दी जाए फौरी से फौरी, ताकि मुसलमान उसका इस्तेमाल कर सकें। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा खबरस्तान प्रोटेक्शन कमेटी का सदर हूँ महबूब नगर का। 3-4 साल कबल महबूब नगर में हर सिमत में हमारे कायद श्रीनिवास गौड़ साहब MLA ज़मीन खबरस्तानों के लिए अलाट किए थे। उसी ज़मीन में इरन्नापेट बागमार साहब के पास और बोईपल्ली गेट और एनगुंडा, मगर एनगुंडे में आके हमको बताया गया था, बाज़ाब्ता इसका कागज़ात वग़ैरह भी दिए गए थे, कमेटी भी तश्कील दी गई थी, मगर बाद में यहाँ के MRO प्रभाकर साहब जो ज़मीन हमको अलाट की गई थी वो एक सर्विसमैन की है कहकर हमको वहाँ से हटा दिया। फिर आगे लेके आकर हमको सर्वे नंबर 380 में हमारे इस वक्त के मिनिस्टर जब MLA साहब थे, उन्होंने उनके साथ आकर हमको ये मौका बताकर बाज़ाब्ता यहाँ पे आप है सो के आपका खबरस्तान का अहाता कर लीजिए, और हुकूमत से 35 लाख रुपए उसके कंपाउंड वाल के लिए भी सैंक्शन हुए थे। ये काम शुरू होने वाला था, उतने में वो क्या वजूहात हुए पता नहीं, फिर रेवेन्यू वालों की क्या सियासत थी हमें पता नहीं। उसके बाद है सो कि हमारा खबरस्तान की ज़मीन वैसी लिट्टी में रह गई, हमको कोई कागजात नहीं दिए गए जो नई ज़मीन बताई। उसके बाद अभी हम जैसे कि आज के हालात में खबरस्तान की जगह बिल्कुल नहीं है महबूब नगर के अवाम के लिए, यानी कि नए शहर जैसा न्यू टाउन है, मरलू है, सदलगुंडू है, आपके बैम्मा तोटा है, जितने भी एरिया है, और कहीं भी है तो कि मुसलमानों के लिए दफनाने के लिए जगह नहीं है। बहुत परेशान हाल में है। हम इस वक्त पूरे लोग ये तय करके यहाँ पे आए थे कि हम कम से कम हमारी कंपाउंड वाल हम बना के यहाँ पे हमारे मैयतों को तदफीन करेंगे, मगर यहाँ आकर देखने से पता चला कि यहाँ पे तकरीबन रेती वगैरह डाला हुआ है। हम दरियाफ़्त किए, फिर यहाँ ठहर के हमने सर्वेयर से बात किया तो उन्होंने हमें इत्तला दी कि यह ज़मीन को हम हाउसिंग बोर्ड के लिए अलाट कर दिए हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि हमको दी हुई ज़मीन बग़ैर हमारी इत्तला के, बग़ैर हमारे के मालूम किए कि हाउसिंग बोर्ड को दे दी गई। बड़ा अफसोस का मकाम है। इससे ये मालूम होता है कि तहसीलदार ये रेवेन्यू वालों की बहुत बड़ी हमारे साथ हरकत की है, जो हमारे को सताया जा रहा है मुसलमानों को। आज हम इतने परेशान हैं, ख़बरस्तान के लिए हमारे लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और ऐसे मौके पर अब हम यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि ये जगह है सो के हाउसिंग बोर्ड को अलाट की गई है। बड़ी शर्म की बात है ये हमारे लिए भी, और हमारे औकाफ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों की ज़्यादा से ज़्यादती हमारे साथ मुसलमानों के साथ हो रही है। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमारी ज़मीन को हाउसिंग बोर्ड को अलाट करना और हमें इत्तला नहीं करना, कम से कम जब उनको अलाट करें तो इमीडिएट हमारे को खबरस्तान की जगह बता दी जाती। हम यहाँ पे आके मालूम करने के बाद पता चलता है कि हमारी ज़मीन दे दी गई है। अब आप एक हफ्ते के बाद आइए, तहसीलदार साहब नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना बात है। अगर ऐसा ही रहा तो इंशाअल्लाह अब हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम है तो कि अगर 3 दिन के अंदर हमारा कुछ हिस्सा, अगर हमारा कुछ ये नहीं किए खबरस्तान की ज़मीन का, तो हम इंशाअल्लाह जुम्मा के दिन बाद नमाज के रास्ता रोको करेंगे
और है सके तहसील ऑफिस को है सके घिराव करेंगे, जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द ज़मीन हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने शादनगर एक्साइज पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर आधी रात को शराब की तैयारी के बारे में मालूमात मौसूल होने के बाद एक्साइज हुकाम ने सुबह सवेरे जाकर जाए वाक़े का मुआयना किया और एक शख्स को तहवील में लेते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वजीर मौसूफ ने तहवील में लिए हुए शख्स से बात करते हुए शराब बनाने के खतरात को बताया और इस मौके पर शादनगर के महकमा एक्साइज के ओहदेदारों और अमले की सताइश की। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। ఇంకోసారి తయారు కావాలి, తయారు చేయద్దమ్మా, సరాయి చేయదు, మంచిది కాదు. కరెక్ట్గా చెప్పాను. సార్ అట్లే కూర్చోండి సార్, 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాం సార్. మీడియా సార్ ప్లీజ్ సార్ అట్లే కూర్చోండి సార్, డిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. మేడం కొంచెం జరుగుతారు. ఇంకోసారి తయారు చేయకు ఇంట్లో తయారు సౌరు పెట్టి తయారు చేస్తాను. మళ్ళా రేపు ఇంట్లో చేస్తావా బయట ఇస్తాను. చేయలేదంటే మళ్ళీ చేసిన పడుతుంది, 2-3 రోజులు ఇచ్చిపెట్టాను. చేసిన వాటికి ఇంకా కష్టమైపోతుంది. చేయలేదు వాళ్ళు ఇచ్చినా नारायणपेट जिला मक्थल आलमी यौम तस्वीर ग्राफी के मौके पर डागोरे की तस्वीर पर कुल्हाए अकीदत पेश किया गया और लेंस क्लब में मक्थल के तमाम फोटोग्राफरों की शॉलपोशी की गई। बाद अज़ां उन्होंने गवर्नमेंट अस्पताल में मरीजों के लिए मेवा तकसीम किया। इस मौके पर लेंस क्लब ओहदेदारान बी रवि और सीनियर फोटोग्राफर बी श्रीनिवासलू, पापी रेड्डी, वी श्रीनिवासलू, हसनुद्दीन, रघुवेंद्र, नरसिम्हा, वेंकटेश, किशन, हसन और दीगर मौजूद थे। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। जिला नारायणपेट के मक्थल मंडल पंचादेव पहाड़ के करीब गुज़िश्ता पीर कश्ती नुमा टोकरे से जा रहे 4 अफराद गर्क हुए थे। आज सुबह जुराला डैम में 2 खवातीन की नाशें दस्तयाब हुईं और 2 नाशों की तलाश जारी है। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ గేట్ లో అండ్ లెఫ్ట్ కెనాల్ లో ఒక బాడీ, 2 బాడీలు దొరకడం జరిగింది। जिला नारायणपेट के मंडल कोसगी में आज हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करते हुए एमएलए पी नरेंद्र रेड्डी ने कोसगी मुस्तकर पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। 10 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला एससी कम्युनिटी हॉल और म्युनिसिपल दफ्तर के लिए तामीर की जाने वाली बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा और वार्ड नंबर 7 में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की और बादजा एबी के फंक्शन हॉल में मुनक्किदा रेवेन्यू मीटिंग में शिरकत की और एमएलए पी नरेंद्र रेड्डी ने इन तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अपने मुखातिबत में कहा कि इस हल्के में अब तक जो तरक्याती काम अंजाम दिए और मुस्तकबिल में जो काम अंजाम दिए जाएंगे इनका तस्करा किया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन कोस की मोहतरमा शिरीषा राजेश साहिबा,
MRO रामकोटी, जॉइंट कलेक्टर नारायणपेट, कोऑप्शन मेंबर ओम प्रकाश, म्युनिसिपल कमिश्नर कृष्णम्माचारी ने शिरकत की। कोसगी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। అదే కాకుండా ఇక్కడ ఎండోన్మెంట్ ల్యాండ్ 8 ఎకరాలు ఉంది, దాన్ని కూడా 99 ఏళ్ళకి లీజు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఇక్కడ చాలా రోజుల నుంచి పందులు చెట్లు అంతా మురుకుంటలా ఉన్నాయి. దాని ఎండోన్మెంట్ మినిస్టర్ లెటర్ పెట్టినాం, అది కూడా 99 ఏళ్ళు లీజుకి ఇస్తారు మున్సిపాలిటీకి. లీజు బేసిస్ తీసుకొని దాన్ని కూడా చిల్డ్రన్ పార్కు, మనకు సండే జరిగే కూరగాయల మార్కెట్ రోడ్డు మీద కాకుండా దీంట్లో పెట్టేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా రాబోయే 2 నెలల్లో మీకు అందరూ కూడా ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయినాక కేటీఆర్ గారితో ప్రారంభోత్సవం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ పార్క్ కానీ, 33 ఎకరాల పార్క్ కానీ, మున్సిపల్ భవనం కానీ, సీసీ రోడ్లు 15 కోట్లతో దేవుడు సీసీ రోడ్లు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రామ మందిరం కాడ కొంచెం నడుస్తూ ఉంది. ఇంకా మిగతా కూడా చేపిస్తా ఉన్నాం. తొందర లోపలనే ఒక 2-3 నెలల లోపల అక్టోబర్ నవంబర్లో భవిష్యత్ కంప్లీట్ చేసి రోడ్స్ हॉस्पिटल में पानी जगता है। महबूब नगर में तेलंगाना यूथ वेलफेयर हैदराबाद के इश्तराक से जो वहां कोविड से मरने वाले अफराद की तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम कर रहे हैं, उसी तरह महबूब नगर में भी ये काम शुरू किया गया है। अब तक 5 मैयतों की तदफीन की गई है। महबूब नगर में इसके जिम्मेदार खालिद नवेद जमात इस्लामी, अब्दुल अली मदरसा खदीजतुल कुबरा, मुश्ताक अहमद, सैफ और सऊद हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम कोविड से मरने वालोों की तजहीज़ और तकफीन के लिए मंदरजा झैल नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। 9703336398, 9014090420। मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए सवारी का भी इंतजाम है। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।